promised in the Opera House meeting that once the film is released, we'll have another opportunity to meet media again. So here we are. And this is mostly to get some kind of reactions from all of you, because the film is already released. And we thought that it's always interesting to meet after the film is released, because we get an idea from you what the audience thought about it and what you thought about it. There are many amongst you that have reviewed the film and sent in your criticisms. So if there are any issues which you feel you need to be brought out, need some kind of explanation from us, questions that may be raised regarding the film, its outcome, why we did certain things. I just felt it's an important exercise because we never get an opportunity to meet the media after the film is released. And this can become some kind of a documentation for future generations. I started this practice a long time ago, earlier on in a film of mine called Teen. And subsequently, I thought it would be a good idea to meet media before and after the release of the film. So thank you so much for being here. And I wonder if Komal is here. Where is he? Thank you so much, Komal. And a big applause to you, because you predicted something about the film, yes, and it came true. Thank you very much. आप कुछ कहेंगे सर? अमित जी ने जो कहा वही मैं कहूँगा, तो unnecessarily I'll be repeating myself. Even I thought this is a very novel idea to face the media, irrespective to the fate of the film. He's right. Okay, probably we learn a lot from whatever mistakes we probably did. But thank you all. Thank you for your support, all of you. And ऐसा कोई रिएक्शन जो आपके इतने फैंस हैं, कोई ऐसा रिएक्शन जो आपको लगता है कि कोई शेयर करना है कि? Yes. Last night, Mumbai Indians beat KKR, and they lost by 102 runs. And I got the first SMS at midnight saying, "Sir, Mumbai Indians 102 not out." So as a Mumbai Indian supporter, I was rather pleased, but KKR belongs to a dear friend and colleague, Mr. Shah Rukh Khan. I'm sure they'll do well in the future as well, but all the best. Yes. I would like to invite our writer, Soumya Joshi. He's here. And Jimit Trivedi, जो हमारे कलाकार हैं, फिल्म के बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं अभी. We need 2 chairs. Yeah, it's there. Yeah. अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज. I just want to say that Jimit has been exceptional in the film. Of course, there's a lot of praise for the film, but Jimit has been exceptional. And the one criticism that both Chintu and me have had from the media is that your Gujarati accent was not correct. The only accent that was good and correct was of Jimit. So, Jimit, thank you so much. तू कभी पंजाबी पिक्चर में काम करके देख. Yeah. So I want to ask, how many Gujaratis here today? Raise your hand. Okay, ma'am, can you, आप कुछ हमसे बात कर सकती हैं? अच्छा, कुछ भी बात कीजिए ऐसे ही. कैसी लगी आपको फिल्म? अच्छी लगी आपको? She has written additional dialogues. She is Digna, Soumya's wife, and she has written additional dialogues. इधर कौन था यहाँ पर? नहीं, ये सब आप गुजराती हैं? अच्छा, उनको क्यों पॉइंट कर रही हैं आप? अच्छा, आप पूछ सकते हैं सर कुछ. सर, आपने फिल्म देखी हमारी और कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? It was not as caricaturist as it is in other films that we've seen Madam, in Hindi films. हिंदी में बात करेंगे आप? इतना the accent इतना funny नहीं था जितना दूसरे हिंदी फिल्म्स में ट्राई करते हैं. जी. I think बहुत it was very close to how my parents would. शांत. देवियों सज्जनों, 3 मिनट से ये अंग्रेजी और गुजराती होने के बावजूद हिंदी में बात करें. कहीं एक्सेंट पकड़ा आपने इनका? नहीं ना? तो फिर हम पे ऊपर आप क्यों चढ़ गए?
sometimes, it's expected that just because you're playing a particular character from a particular state or a particular region, it is expected that you will have that accent. But in normal life, Gujaratis speak very normally. And फिल्म में कई एक जगह पर जहाँ पर हमें लगा कि एक दिखाना है कि हाँ गुजराती है, वो हमने किया, जैसे कि जूते नहीं पहने घर के अंदर, जैसे कि अंग्रेजी शब्द जो हैं, तो अगर उसको कहना है कि मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उन्होंने कहा मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो रिकॉर्ड को रिकॉर्ड, कई एक जगह ऐसे थे जहाँ पर ये शब्द आया, और हैं प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी थी और ये जानबूझ के रखी गई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी फिल्में जो हैं वो पैन इंडिया है और सबको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर इतना ज़ोरदार एक्सेंट अगर हम डाल देंगे ये बताने के लिए कि हम गुजराती हैं, तो हो सकता है कि अलग प्रांतों के जो लोग हैं वो शायद उसे ठीक तरह से समझ ना पाए, इसलिए थोड़ा उसको कम रखा था जानबूझ करके। और ये उमेश जी का एक आदेश भी था, उमेश का आदेश, वाह क्या बात है, कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप इसको make it a typical Gujarati caricatured character. He wanted it to be pretty normal. Yes, the odd sentences or the odd word which has a Gujarati twang or a suggestion of being a Gujarati, that's all that he wanted. Jimit he did not stop, because Jimit is a superstar in Gujarat, and if he hadn't done what he was asked to do, he would have got a pasting. नहीं, और फिल्म में ये भी दिखाया गया कि मैं गुजरात से ही आता हूँ। तो ओके यार, तो हम लोग किधर से आए फिर? आप मुंबई में पहले से बेस्ड हैं और मैं ठेठ गुजरात से आया हूँ, तो इस वजह से। और दूसरा एक ये भी था कि ज़्यादा कैरिकेचरिस्ट जो आप लोग जो टीवी में और दूसरी फिल्मों में देखते हैं, वो ऐसे हम लोग गुजरातीज भी ऐसे बात नहीं करते हैं। वो ऐसा करते हैं ना, ऐसा हम लोग कभी उस तरह से गुजराती में बोलते नहीं हैं। तो वो भी एक कंसर्न था कि ऐसा लाउड और ऐसा नहीं करना था। सौम्या से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि उन्होंने प्ले लिखा भी है, प्ले डायरेक्ट भी किया है, उनको क्या फ़र्क लगा प्ले में और फिल्म में? और ऑब्वियसली मैं जब फिल्म लिख रहा था तब व्हेन यू आर अडेप्टिंग, आप जब अडेप्ट करते हो एक प्ले को फिल्म में, तो दो चैलेंजेस होती है। एक तो ये होता है कि आप बहुत कुछ बदलना चाहते हो क्योंकि मीडियम दूसरा है, और ये भी बैक ऑफ द माइंड होता है कि यू डोंट चेंज द वेरी क्रक्स ऑफ द स्टोरी। फिल्म लिखते वक्त मैं ये कोशिश करता था, मुझे बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा था कि इसका गोत्र जो है, इवन कहानी का जो गोत्र है वो थिएटर है, तो थोड़ा बहुत थिएटर फिल्म में भी रहेगा, लेकिन उसमें फिल्म के मुताबिक काफ़ी चेंजेस ऑब्वियसली होने चाहिए जो हुए, लेकिन उसका गोत्र जो है वो थोड़ा थिएटर का रहा, और वो एक कॉन्शियस एफर्ट थी। जैसे कि सेकंड हाफ में देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स विच आर द आई थिंक द पिवटल सीन्स। एक अमित जी का सीन है, आई होप यू अंडरस्टैंड, और एक ऋषि जी का सीन है एयरपोर्ट पे। ये दोनों सीन्स प्ले में नहीं है, दे आर नॉट इन द प्ले। ये फिल्म के लिए लिखे गए, लेकिन फिर भी उसका जो गोत्र है, उसका जो क्रक्स है वो थिएटर जैसा है। इट इज ड्रामेटिक, सो इट हैड टू बी लाइक दैट बिकॉज द स्टोरी was from theater. It had to be a little bit of theater and then an effort to adjust to the medium. Language की बात में I'd just like to add, I'm getting great news from Gujarat. लेटर राइटिंग का जो सीन है उसके पहले अमित जी बहुत धीरे से एक छोटा सा सेंटेंस बोलते हैं, आवी गयो जाड़ियो, and the audiences in Gujarat are erupting over that. I was in Kandivali yesterday, which is again a very Gujarati bastion. So wherever he says "Avi gyo jadiyo" or "Na su hoy lakhota," it is said in such a way that audiences are really loving it. So I think it was while I was writing the dialogue, I just wanted to sprinkle a little bit of Gujarati, and that's how it was conceived. Some of the comments from well-wishers came that
the film was it was constricted to just one room. And as you know, in today's times, everything is so fantasized, so larger than life, huge production values. They felt, don't you think it was wrong not to have gone out of this one house that both of us were living in? But I really don't have an argument for that. I think Umeshji deliberately wanted the house to be middle class and restricted to the home, because everything that happens in the film is contained within those four walls. Yes, there were opportunities when we went out, so those were beyond any kind of grand exploitation. I think if we had added, a lot of glamour and grandness to the film, as Soumyaji was saying, the crux of the story would have been destroyed, because it was more personal reactions, interactions between a father and son and their relationship. So I don't know what you feel. We'll talk to you about that later, but this is something that came up. If I may add, there's been criticism saying that the film starts off like a play because it's based on a play. My father made a film called Sangam. The playing time was 4.5 hours, and there were only 3 characters in the film. There was no 4th character. No one said there that was looking like a play or a stage play. Because it's made on a play, that's why you say it looks like a play. So I think that's one criticism which is uncalled for. Yeah. मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी टीम को, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जी, यहाँ पर एक ही आवाज़ है यहाँ पर ऐसी, बोलिए। जी शुक्रिया। देखा जाए तो मैं जरा बैठ जाइए। And he takes it seriously also. ऑफ कोर्स। मैं अनुराग पांडे, आइए सर। अब मैं कहाँ बोलूँ? जरा बैठ जाइए। जी, मुझे मतलब मैं 1 घंटे तो बोल ही सकता हूँ फिल्म की तारीफ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर थे, आपकी टाइमिंग बहुत कमाल थी, 102 मिनट की जो फिल्म थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फीवर 104 FM रेडियो नशा ने 102 के टीम में हम लोग गए, फिल्म दिखाए लोगों को। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत खटका, जो मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा। जो बड़ुम्बा गाना था, वो गाना जब ये लोग पार्टी करने जाते हैं उसके पहले आ सकता था या उसके बाद आ सकता था। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं दोबारा पिक्चर देखने गया, फिर तिवारा पिक्चर देखने गया कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा पूछ ही लूँ सामने है तो। सर आज शाम तक आपको मैं मिठाई भेज दूंगा, क्योंकि यही मैं उनसे कह रहा था, ये माने नहीं। क्या बात है। एक ही था कि उसकी एक सीन पहले ही और एक गाना गाया था, तो वो एक शायद वजह रही होगी जो मुझे लगता था कि कहीं पेस को वो थोड़ा ढीला ना कर दे, वही एक वजह थी और कुछ नहीं थी। और वो जो गाना जिस तरह से पिक्चराइज हुआ है, उसमें चिंटू साहब जो है वो भी डांस करते हुए दिखाए हैं। तो हम लोगों ने जब ये गाना डिज़ाइन किया था, जब प्लान किया था, तो वो प्रमोशनल सॉन्ग की तरह ही हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। अगर चिंटू जी उसके पहले अगर डांस करते हुए दिखाई देंगे आपको, तो फिर जब वो पहली बार प्लेन के सामने आते हैं, वो पत्थर का विमान है जहाँ उनके ऊपर वो जो नकली विमान एक आके उनको लगता है, और पहली बार जो उनके चेहरे पर स्माइल आती है, वो इम्पैक्ट जो है वो पूरी मर जाती थी। क्योंकि वो उनका पहला एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो पिताजी ने उनको जर्नी इन द पास्ट के लिए भेजा हुआ है, कि जहाँ से वो धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, उसके बाद चर्च, उसके बाद कहीं और सिटी बेकरी। तो वो जो प्रोग्रेशन था, वो प्रोग्रेशन के पहले अगर ऐसा नाचता हुआ गाना आ जाए जिसमें चिंटू साहब भी डांस कर रहे हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता था। तो नहीं पर देखिए गाना देखिए, लेकिन सर अब डाल दिया गाना जी नहीं पर एंड में। हाँ तो एंड में डाला ना, वो भी स्क्रॉल के बाद डाला। नहीं, अभी जल्दी रेडियो आ में गया। चलेगा यार, कल से जैसे ही आएगा ऊपर से बात की लास्ट शॉट अच्छा इमीडिएटली आ जाएगा। जी जी, एंड तो बहुत कमाल था, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था किसी को बताया ना जाए। अमित जी ने भी मैसेज किया था जी। किसी को बताया ना जाए, बहुत कमाल है, एंड बहुत कमाल था। लेकिन अब आप बता दीजिए कि गाना आ गया है वहीं पर। जी जी वहीं पर आ गया है, पर जहाँ होना आई डोंट नो, मतलब मैं शायद ऐसा सोच रहा सर हूँ। वो इमोशन जो है ना, हाँ वो डिस्टर्ब करता, अच्छा अच्छा क्योंकि इसके बाद चिंटू जी का जितना इमोशन है इनकी कहानी का, वो फिर नष्ट हो जाता। और वो जो पुराना गाना था जो आपने गाया था, वक्त ने किया, हाँ सर, वो उसका उपयोग नहीं हो पाया कहीं पे। इतना बढ़िया गाना है और हमने तो बहुत जगह बजाने की कोशिश भी की। that was just done for the promotion of the film and because it had reference in the story, but yeah, we can't use that song. सर उसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। थे एक्चुअली 3 गाने फिल्म में जी और सारेगामा जो कि म्यूजिक कंपनी है, वो डिस्क में 4 गाने मिनिमम डालने पड़ते हैं। जी
तो उन्होंने कहा सर ये 4 एक गा दीजिए, हमारी लिस्ट पूरी हो जाएगी, इसलिए हमने गा दिया। क्या बात। चलिए बधाई देना चाहूँगा कि इस बार के अवार्ड सब आपके हाथों में आएंगे, तो इन सब मीडिया वालों को याद रखिएगा। हाय सर, भावना दिस साइड फ्रॉम जी। सर अक्सर ऐसी फिल्म दिस साइड सर ऑन योर लेफ्ट। हाँ सॉरी, या ओके। सर अक्सर ऐसी फिल्में हमने देखी है जहाँ पे बच्चों का परसेप्शन दिखाते हैं कि वो कई बार पेरेंट्स से परेशान हो जाते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम्स भेज देते हैं। आप लोगों के फिल्म में इसका विपरीत दिखाया है। बुजुर्ग लोगों ने आपको कोई रिएक्शंस दिए, उनको कैसा लगा? बिकॉज जो आपकी केमिस्ट्री दिखाई है आप दोनों की फिल्म में काफ़ी क्यूट है, तो उन लोगों ने जब ये फिल्म देखी उन्होंने आपको क्या रिएक्शन दिए, उन्हें कैसी लगी फिल्म? बहुत सारे रिएक्शंस आए, और 5 मिनट पहले भी अभी मैं जब वॉशरूम गया था तो हमारे जो बगल में खड़े थे उन्होंने भी यही कहा कि मैंने अभी आपकी फिल्म देखी है और मैं हूँ नहीं यहाँ से, मैं विदेश में हूँ, लेकिन जिस तरह से रिश्ता आपने दिखाया और जो समस्या थी उसको जिस तरह आपने दर्शाया है और उसका जो समाधान बताया है उससे मैं मानता हूँ और सहमत हूँ। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाट ही सेड। ऐसी फिल्में और बनेंगी आपको लगता है? अब इस एंगल को और एक्सप्लोर किया जाएगा? और उमेश जी जो आपने प्लीज़ बोलती रहिएगा ऐसे, क्योंकि हमारी नौकरी जो है वो कायम रहेगी। सर आपकी तो नौकरी चलेगी बहुत लंबी, आपके लिए हम स्क्रिप्ट्स दोनों की लिखी नौकरी जाती है, आपके लिए फिल्म्स लिखी जाती हैं, एंड यू हैव बीन वेरी मॉडेस्ट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। पर आज के वक्त में भी आपको ध्यान में रख के फिल्में लिखना और आपके लिए स्पेशली फिल्में बनती है, कैसा आपको? ये बिल्कुल असत्य है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिएक्शन मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम लोग नॉर्मली जो है वो थिएटर के बाहर जाते हैं, देखते हैं कि लोगों को कैसी लगती है फिल्म। तो हम लोग वहीं खड़े थे, मैं और सौम्य बाहर खड़े थे, और हम लोग देख रहे थे कि लोगों को क्या लग रहा है। ऐसा पूछते नहीं थे जानबूझ के, पर जो भी बात करते हैं ऐसे सुन रहे थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब फिल्म चल रही हो तभी आपको लाफ्टर आ जाए, या कभी आप तभी उस वक्त रो पड़ो, या जो भी इमोशन में रहते हो उस वक्त रहना आपको समझ में आता है कि हाँ, फिल्म देख रहे हो तो आपको रोना भी आ गया, हंसना भी आ गया। एक कपल हमने ऐसा देखा जो थिएटर के बाहर आके, एकदम ही बाहर आके फूट फूट के रो रहा था। तो थोड़ा ताज्जुब लगा कि ये क्या हुआ, इनको पता नहीं चला। तो उसमें से फिर मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोला, और उन्होंने पहचान लिया कहीं टीवी पे कहीं देखा होगा कि बहुत अच्छी फिल्म है, ये है वो है। तो बोला हाँ ठीक है ठीक है। मैंने बोला अभी अभी आप इतना रो क्यों रहे हो? बोला ये टाइमिंग ऐसा हुआ है अभी कि हम लोग फिल्म देख के बाहर निकले और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो बेटा है जो यूएस में रहता है वो कभी कभी हमें इस तरह से इग्नोर करता है। तो मुझे लगा कि मैम वैसा हम लोग ने ऐसे जो भी रहता है ऑब्जर्वेशन से ही सब बनती है फिल्में। तो उन्होंने कहा नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि उसने वहाँ के टाइम के हिसाब से, अमेरिका के टाइम के हिसाब से अभी फिल्म देखी, और हम थिएटर के बाहर आ रहे थे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वहाँ से बेटे ने उनको फ़ोन किया था कि सॉरी मम्मी पापा कि हमारे से गलती हो गई है, आप जल्दी से अमेरिका आ जाइए। तो ये बहुत ही ऐसा रिएक्शन था जो उस वक्त ही हमें पता चला, उस वक्त ही हमें पता चला कि यार ये ऐसा भी हो सकता है कभी। तो जब कोई एक फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट का जो क्वेश्चन है उससे थोड़ी आगे जाती है तो हमें अच्छा लगता है। तो यही एक शेयर करना था। थैंक यू। जिस दिन ये रिलीज़ हुई मिडिल ईस्ट में एक दिन पहले होती है, तो एक एसएमएस आया कि ये देख करके मैं बहुत रोई। एक महिला थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे भाई को ऐसे ही गेट आउट बोला था। तो कोई एक समस्या होगी उनके परिवार में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपके निजी जीवन में होता है उसके साथ अगर आपका संबंध हो, अगर आप उसे फिल्म में देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट होता है। कई बार मैं वो बागबान अपनी फिल्म के उदाहरण मैंने कई बार दिया है। बागबान देखने के बाद एक लड़का था, फोन आया कुकी चोपड़ा के पास रात को 3 बजे। He said, you don't know me, I'm calling you from London. It's very late, I know, it's at 3 o'clock in the morning at your end, but I've just seen your film Baghban, and I want to tell you that I'm a second-generation immigrant in the United Kingdom. I've had an issue with my father. We live in the same city, but I haven't seen him for 25 years. I haven't spoken to him because of the problem.
I've just seen your film, and I have rung you up to tell you, I'm going to ring up my father right now and say, I'm sorry. So sometimes, you know, these emotions, they have effect on people. अमित जी, कपूर साहब, आलोक किया आपके सेंटर। जी जी। मैं पहले तो एक जिक्र करूंगा, एक ऐसे ही वाकया जैसा उमेश जी ने बताया कि मैं बैंड्रा से जब लोखंडवाला की तरफ जा रहा था तो रिक्शे वाले ने भी ये फिल्म देखी, हर वर्ग इस फिल्म को देख रहा है। एंड ही वाज टॉकिंग टू हिज फैमिली एंड ही सेड कि मैं अपने अम्मा से और बाबूजी से बात किया और फिल्म देख करके, क्योंकि बहुत दिनों से वो मुंबई में था, और उसने बताया कि आज मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आई और ये सब कुछ आपकी फिल्म की वजह से हुआ था। तो मैं तो बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये फिल्म टच कर रही है हर एक वर्ग को। दूसरा सवाल ये है कि परिवार जा रहा है, परिवार के हर एक सदस्य जा रहे हैं, आपके परिवार की तरफ से क्या कहा गया, घर वालों ने क्या कहा जब इस फिल्म को उन्होंने देखा और आप लोग इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे? अगर एक एक करके आप जिक्र कर सकें। मैं बोलूँ? जी सर, आप शुरू कर सकते हैं और सब सौम्य जी। घर वालों ने सब देखा और बच्चों को बहुत पसंद आई। मैडम जो है, उनकी जो व्याख्या होती है मेरे काम पे, वो थोड़ी सी गंभीर होती है और शांत रहती है, तो कई बार तो वो कुछ बोलती ही नहीं है। इस बार उन्होंने कुछ अजीब सा कहा, उन्होंने कहा कि ये टाइमिंग जो है इस फिल्म की बहुत सही है, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी फैंटेसाइज फिल्म्स, हॉलीवुड से एवेंजर्स आ रही है, ये आ रही है, वो बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, अचानक एक छोटी सी फिल्म आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं घर कर जाएगी। सही कहा उन्होंने। उमेश जी, ये तो आप सब अभी सब तारीफ कर रहे हैं। नुक्स क्या है, या एनी क्रिटिसिज्म, एनीथिंग दैट यू फील वाज नॉट राइट, यू नो, वीड लाइक टू नो, बिकॉज we can carry on talking about the benefits of the film and the good that it has done. But if there's something that, you know, you feel needs criticism, yes, Kumar, give him a mic. You know, I think there are two kinds of films. एक normal किस्म की फिल्में होती है which don't affect you so much. There you ought to realize why it's not affecting you so much. It is not meant to affect you emotionally. Right. So आप as a reviewer, as a trade analyst, as a critic, you try to understand ये गलत है, screenplay में ये गलत है. दूसरे टाइप की फिल्म होती है 102 Not Out की तरह. These films are not to be watched with your mind. You have to watch with your heart. दिल को छू गई. I think it is a futile exercise to try to understand इसमें ये गलत है, इसमें accent नहीं है, गुजराती एक्सेंट नहीं है, दिल को छू गई, nothing, I repeat, nothing matters, which is why you are getting the response from the आम जनता. वो लोग रिव्यूअर्स नहीं हैं, वो लोग क्रिटिक्स नहीं हैं, उनको दिल में घर कर गई, मतलब हिट फिल्म है. So that is the परिभाषा of this film. I don't think we should even analyze कि क्या खामी है. इतनी अच्छी तरह अगर दिल को छूती है कि लोगों को रुला रही है, अपनी बातें याद करवा रही है, I think the entire exercise of trying to purposely, even we as reviewers, sometimes we get carried away, apna job hai, how can we praise the film so much? But of course, if it is meant to be praised so much, you ought to praise it to the skies, because otherwise, aisi film mein kaun likhega? I mean, I think Soumya Joshi is as much a hero of the film as you or Rishi ji. No, he is the main hero. Yes, और उमेश शुक्ला is as much a hero, and मैं बोलता हूँ अगर, और जिमित त्रिवेदी, अगर 2 या 4% इधर उधर हुई है, it is our bounden duty to not let that come out, because this is the kind of cinema which affects people so badly कि ये 2 साल और 4 साल बाद भी, I'm telling you, guarantee, जब 2 साल बाद ये टेलीविजन पर देखेंगे, टेलीविजन पर 3 महीने बाद आ जाएगी, 2 साल बाद देखेंगे, I'm guaranteeing you, I can imagine myself, जैसे मैं बागबान देख रहा था, यही होने वाला है इस फिल्म में भी. मेरे घर में टेलीविजन रिपेयर करने के लिए कोई आया था, so he was repairing, the picture was not clear, and बागबान, वो चैनल चल रहा था बागबान. So I told him, 1 minute. So he stood like that, and I'm watching, ऐसे करके, I'm crying, and both of them are looking at each other, saying, चले अपन. I said, रुको यार, तुम disturb मत करो. You know, that is the kind. Yeah. So I'm saying this film also that there is no need to analyze कि क्या गलत है. According to me, हर चीज सही है, because दिल को इतनी छू गई, बाकी चीजें don't matter. Finally, a film has to connect with the heart. It has connected so beautifully कि don't even try to delve and understand what is wrong. I think everything is right with this film. Thank you so much, thank you. Kumar. Thank you. Yeah. Yeah.
हेलो हेलो हाँ उमेश जी सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि ये एक अनोखी किस्म की फिल्म है जिसमें एक विसल के जरिए एक ट्रैजिक न्यूज़ का संकेत ऑडियंस को होता है जी ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप इन सिनेमा बिकॉज यू नो जनरली वी हैव मेलोड्रामेटिक सीन्स एंड ऑल एक सिर्फ सीटी बजती है और उससे आपने ऑडियंस को कन्वे कर दिया आई थिंक दैट्स अ मास्टर क्राफ्ट्समैनशिप थैंक यू। और वो इसलिए दिखाना भी नहीं चाहते थे। उसका जया जी ने जब ट्रायल देखा तभी मुझे ट्रायल देखने के बाद मुझे पूछा था कि ये अच्छा हुआ कि आपने उसको मेलोड्रामेटिक नहीं किया और सिर्फ सिटी के ज़रिए ही आपने ये चीज़ दिखाई, तो बहुत अच्छा लगा। सेम उनका भी यही रिएक्शन था। और उन्होंने पूछा कि ये कैसे आया, मैंने बोला कि ये तो सौम्य ने लिखा था और इसी तरह से उन्होंने लिखा था। और उस वक्त ही मुझे एक जवाब मैंने उनको दिया जो मैं आपको दूंगा कि ये जब फिल्म ही लाइफ के बारे में है तो डेथ क्यों दिखाना, जब फिल्मी जिंदगी के बारे में है तो वो चीज़ क्यों दिखाना। क्या बात फिल्म इज अबाउट लाइफ। अमित जी आपका कमेंट चाहूँगा कि रियल लाइफ में आप बहुत अच्छा सीटी बजाते हैं, आप अभिषेक के साथ कम्युनिकेट भी अच्छा करते थे, मैंने खुद देखा है। तो ये जब आपका जो कैरेक्टर था जो सीटी नहीं बजा सकता है, आई जस्ट वांट योर कमेंट ऑन दैट। सर जाने से पहले सिखा दूंगा उसको मैं ऐसे बजेगी सीटी। Any other questions? मेरा सवाल दत्तात्रेय वखारिया और बाबूलाल वखारिया से है, आप दोनों से सर। अनुज्ञा गुजरात मित्र से, आपके सामने सर, यहाँ जी। दत्तात्रेय जी और बाबूलाल वखारिया जी, आप दोनों ने साथ आते आते 26 साल लगा दिए। 27 साल। और कितने साल लगाने वाले हैं आप साथ आने में? नहीं अब हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए और बनाए हमारे साथ। इतनी सारी फिल्में हमने साथ में की हैं और सबका वातावरण बहुत ही अच्छा था। अब मौके मिल रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म की रिलीज़ के बाद और बहुत से भी मौके आएंगे हमारे जीवन में। अभी तो बाप बेटे हैं, अभी 2 बाप कर सकते हैं, 2 भाई कर सकते हैं, चचा भतीजा कर सकते हैं, दादा नाना कर सकते हैं। तो कोई लिखने को तैयार हो जाए बस। ऋषि सर से मैं बात करना चाहती हूँ। ऋषि सर, सूरत में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले और सबसे ज़्यादा टीआरपी बाबूलाल वखारिया की वहाँ पे हो गई है और सब लोग बोल रहे हैं कि भाई एक्टिंग की जो क्लास है नए आर्टिस्टों के लिए, ऐसा लगता है कि ऋषि दी ने फिल्म के ज़रिए खोल दी है। क्या बात है। थैंक यू। ये तो एक टीम वर्क होता है, हर आदमी हर शख्स इन्वॉल्व रहता है पिक्चर में, जैसे हमने देखा इस फिल्म में। और इस फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि हमने फिल्म एक साथ में शूटिंग की, जुट के एक ही स्टैंड में। सो एवरीबॉडी इज इन द कैरेक्टर। तो हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पिक्चर में। हम सोचते हैं कि ये एक फिल्म बनाना एक फुटबॉल गेम है, हमको बॉल ड्रिबल करके गोल की तरफ ले जाना है और हम सब खिलाड़ी हैं उसमें। वी आर इक्वली ऑल इन्वॉल्व इन दैट। सो टुडे वी हैव गॉट अ जस्ट डिजर्ट्स, वी वेरी हैप्पी। मैं वो जो कोमल कह रहा था, बहुत अच्छी बात की। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ लिटिल बिट मोर ऑन दैट। ऐसी किस्म की पिक्चरें अगर लोगों को पसंद आएगी तो फिर ऐसी बनेंगी। अगर ऐसी नहीं पसंद आएगी तो फिर हम वही बनाते रहेंगे जो हम बनाते रहे हैं, जो स्टीरियोटाइप आते हैं। जी हाँ, जो हम फॉर्मूला बनाते हैं, मैं मजाक में कहता हूँ कि हम कभी जब यंग थे तो हम सब एक्टर के पास कभी ना कभी 4 फिल्में तो लॉस्ट एंड फाउंड में होती थी। ऑडियंस इतनी फॉरगिविंग थी कि लॉस्ट एंड फाउंड हर एक्टर घूम जाता था बिगिनिंग में और एंड में विलन को मारते मिल जाता था। तो वो दौर चलते गए टिल व्हेन आई डू नॉट नो। किस्मत बनी थी दादा मुनि के साथ ऑल्सो ऑन दैट, रतन या किस्मत, वन ऑफ देम। तो यही है कि दिस काइंड ऑफ सिनेमा इज अप्रिशिएटेड, देन वी've seen a lot of good films coming, like what we saw Hindi medium and Hitchki and Newton and all these are different, they're off the curve films. तो ये चल रही, तो एक अच्छा वातावरण बन रहा है। We will attempt to make better films and that's how Indian industry will also improve. नहीं तो वही पिक्चर बनाते रहेंगे, सिंगल थिएटर, मार पिटाई, all that. अमित सर, सक्सेना,
पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अमित जी 102 में भी वैसे ही रहेंगे जैसे अभी है। बड़ी कृपा है आपकी। मैं तो रहूँगा नहीं वहाँ पर, लेकिन धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, आप रहेंगे। और मुझे ये पूछना था कि अमित जी तो 102 में भी फिल्म में भी जवान थे, लेकिन ऋषि जी को 75 का बूढ़ा बनना था। तो जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो आपके मन में क्या फीलिंग आई, या कोई बुजुर्ग था जिसकी आप एक्टिंग, लाइक आपके डैडी भी मतलब बहुत फेमस थे वो शाहजहां वाले रोल में और सब, तो आपके दिमाग में क्या आया कि लाइक मुझे अभी आप यंग है, हाँ आपकी एज उतनी नहीं है कि आप 75 के बुढ़े का रोल करें, तो जब आपको ये ऑफर हुआ तो क्या फीलिंग थी आपके मन में? मैंने तो बस अपने इंस्ट्रक्शंस अपने डायरेक्टर से ली है। उन्होंने कहा, राइटर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, और एक ऑब्जर्वेशन लाइफ में होती है, ऐसे तो कोई हम रियलिटी में तो बिलीव नहीं करते। मेरे पिताजी 75 साल के कभी हुए नहीं, बिकॉज उससे पहले ही गुजर गए थे, तो ये डिराइव करते हैं फ्रॉम लाइफ। बाकी जो अंदेशा हमको देते थे डायरेक्टर साहब, वही हम वैसे ही करते थे। आप मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना फिल्म में बहुत क्यूट बुढ़े लगे। हम मिलेंगे आज इसके बाद वही वही कॉम्प्लीमेंट मुझे देना था कि मुझे पूरी फिल्म में एक बहुत ही अच्छे लगे, क्यूट बुढ़े एकदम। थैंक यू। इसका कैसे बनेगा यार, तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो। रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार? अमित सर, ऋषि सर, आप दोनों से सवाल है। पहले तो मैं बता दूं कि फिल्म मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई। बहुत ही नॉवल आइडिया था जिस पे ये फिल्म बनी है, और ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है। मुझे दो बहुत स्टैंड आउट सीन्स लगे जब अमित जी ऋषि सर को उनके बेटे की याद दिलाते अमोल की, और कहते हैं कि माँ को अल्जाइमर था, फिर भी बेटा नहीं आया, और उसने बहुत एक्सक्यूजेस बनाए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ किया, और ऋषि कपूर बहुत फूट फूट कर रोते हैं। बहुत स्टैंड आउट सीन था, बहुत इमोशनल सीन था। और एक बहुत हिलेरियस सीन मुझे लगा जब आप ऋषि सर को आदेश देते हैं कि वो अपनी दिवंगत पत्नी को एक लेटर लिखे, लव लेटर लिखे। वो भी बहुत स्टैंड आउट सीन था जब आप वो लेटर पढ़ते हैं। तो मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप लोगों के लिए ये फिल्म तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, सारे जो कुछ भी आप लोगों ने किया काफ़ी दिल के करीब होगा, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा सीन जो आप लोगों का फेवरेट हो, ऋषि कपूर सर आपका और अमित सर आपका? मेरे लिए तो पूरी फिल्म है। आई लाइक द फुल फिल्म। या ऐसे अलगाव हमसे नहीं होता हमारे मन में। हमारे लिए हर सीन, एक चल के आना हो, कुछ ना बोलना हो, केवल खड़े होना हो, वो भी हमारे लिए एक समस्या होती है। कहाँ जाना है, कहाँ खड़े होना है, चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। कई एक जगह पर पीछे खड़े हैं, कहीं कुछ करना नहीं है। तो हमारे लिए हर एक सीन जो है वो ऐसे ही होता है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो कि बहुत दूर खड़े हैं पीछे, फिर भी आप उन्हीं को देखेंगे, सामने जो फोरग्राउंड में खड़े हैं उनको नहीं देखेंगे आप। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हमारी एक फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, उसमें अरुणा ईरानी जी मेरे साथ थी और शत्रुघ्न सिन्हा। एक सीक्वेंस था जहाँ स्विमिंग पूल के पास अरुणा ईरानी जी और मैं कुछ बात कर रहे हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ थे। फिर उनको हमने कुछ ऐसे ही डांट फटकार करके पीछे, थोड़ा विलेन का रोल था उनका, डांट फटकार के पीछे छोड़ दिया। हम लोग आगे चले गए, फोरग्राउंड में हम लोग दोनों बात कर रहे हैं। बात करते करते वो एकदम आउट फोकस में है, पीछे खड़े, बात हम लोग दोनों कर रहे हैं। सडनली सर मैंने देखा कि एक स्मोक रिंग चलता हुआ हमारे सामने आ रहा है। दैट वाज शत्रुघ्न सिन्हा स्मोकिंग एट द बैक देयर एंड सेंडिंग स्मोक रिंग्स इन द फ्रंट। So you would wonder where this has come from. Smoke signal. And you start looking at him instead of the two people in front of the camera. तो ऐसे बहुत उदाहरण होते हैं, बट यू नो वो भी एक कला है अपने आप में। एक छोटा सा और सवाल था कि जब आप लोग फिल्मों में काम करते हैं और कोई ऐसी फिल्म होती है जिसमें ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है और घंटों मेकअप में बैठना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को एक अलग अवतार लेना होता है। जैसे ऋषि सर ने कपूर्स एंड सन्स में 6-6 घंटे मेकअप के लिए बैठते थे, इसमें भी काफ़ी घंटे आप बैठे पा में इतनी देर। जी मैं वही बोलने वाला था। पा में आपने एक अलग लुक लिया था जिसमें एक्टिंग से ज़्यादा आपको मेकअप पर ध्यान देना होता है, और एक्टिंग कम समय के लिए करनी पड़ती है क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त लगता है। तो ऐसे में परफॉर्मेंस कितना हैम्पर होता है जब कॉस्ट्यूम पे और मेकअप पे ज़्यादा ध्यान होता है? जब परफॉर्मेंस एनहांस होता है, एक बार वो चेहरा लग जाता है तो फिर आप वैसे ही बन जाते हैं और उसी के मुताबिक करना पड़ता है। प्रोस्थेटिक्स जो हैं वो चेहरे को और स्किन को और फेशियल एक्सप्रेशंस को एकदम जकड़ देते हैं। तो किस तरह से कितना हिला सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो अपने आप में एक एक्टिंग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो जब वो प्रोस्थेटिक्स लगता है तो वो हमें
बहुत फ़ायदा देता है या फ़ायदेमंद होता है। ऋषि सर, जैसे मैंने इस फिल्म में 102 में अमित जी को देखा था, जब पहला शॉट में दे रहा था तो वो किस तरह से अपने रोल में घुस रहे थे, अपने कैरेक्टर में, एंड ही वाज फ्लर्टिंग विद दोज वर्ड्स एंड हिज आई डोंट नो वेदर he knows about it or did you do it on purpose. He's using his tooth, his gum, his, you know, जब पहले एक दो शॉट में he was getting into the character. I noticed it. I've also talked about it. ये exercise, so that is what you are saying. ये जैसे उन्होंने कहा, ये you know it enhances your work because that's what he did. Yeah. अमित सर, Yeah. अमित सर आपके सामने सर, बतौर एक्टर, बतौर सिंगर लोगों ने आपको काफ़ी प्यार दिया है, लेकिन इस फिल्म के साथ बड़ुम्बा गाने में आपने कंपोज भी किया है गाना। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? डिफ़िकल्ट था, इजी था आपके लिए? क्योंकि अब तो आप लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, राज करते हैं आप लोगों के दिलों में। कैसा रहा कंपोज? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई धारणा भी नहीं है। यदा कदा हम ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं, बेसुरे सही लेकिन गुनगुनाते रहते हैं। तो सबसे पहले राकेश कुमार ने मिस्टर नटवरलाल में गाना था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा ये आपको गाना है। मैंने उसे कहा तुम पागल हो गए, ऐसे होगा नहीं हमसे सब। बहरहाल किसी तरह वो गाना गवा दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोग गाना गवाने लगे। होली के समय हम लोग बचपन से गाते आ रहे हैं, रंग बरसे और बहुत सारी जो लावारिस में गाना था, मेरे अंगने में, ये सब हम लोग होली के समय में गाते थे। प्रकाश जी ने और यश चोपड़ा जी ने, जो कि आते थे हमारे यहाँ होली खेलने, उन्होंने सुना इसको और उन्होंने कहा कि इसको हम फिल्म में डालेंगे। वहाँ भी मैंने कहा ये पागलपन है, लेकिन वो पड़ गया और फिर प्रचलित भी हो गया। तो जब और बीच बीच में मैं, हमारे मित्र अब गुजर गए हैं, आदेश श्रीवास्तव, रात बेरात हम लोग अकेले बैठ जाते थे उनके स्टूडियो में ऐसे ही बातचीत करने के लिए, और कभी कुछ धुन निकल जाती थी उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे, कोई गाना गा देते थे, ऐसे ही मजाक मजाक में। फिर धीरे धीरे बागबान आए, उसमें हमने कहा कि यार हमको भी मौका दो, इसमें हम कुछ गाना गा देते हैं या बनाते हैं। तो इसी तरह शावा शावा भी जो थी वो बनी, कभी खुशी कभी गम में। एक्चुअली करण जौहर ने कोई और गाना रिकॉर्ड किया था। फिर मैंने जब उसको सुना, मैंने कहा करण ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। मैंने कहा कि अभी तो शूटिंग है, मैंने कहा एक दिन दो मैं ट्राई करता हूँ कुछ और बनाने के लिए। तो आदेश और मैं बैठे और फिर एक ये जो शावा शावा गाना बना है वो बन गया। तो इसी तरह हम लोग मजाक मजाक में करते रहते हैं। जब ये फिल्म की बात आई तो जब आखिरी दिन थे शूटिंग के, तो जैसे कि हमने कहा कि मैंने इनसे कहा कि यू नो वी आर मिसिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म, brings in the excitement. The younger generation will not come to see this film because there's nothing for them there. Can we put some kind of a happy song there? So he said there's no space in the film for the song. जगह नहीं है कोई। मैंने कहा एक गाना में बना करके आपको सुनाओ क्या? उन्होंने कहा बनाइए। फिर जब गाना बन गया, इनको अच्छा लगा और फिर that's how it all came about. ऐसे ही मस्ती मस्ती में बैठ करके बना दिया, कोई खास परिश्रम नहीं किया हमने। हमारे दो मित्र हैं, रोहन विनायक, और उनके साथ भी हम ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते हैं। दरअसल मैं एक एक्चुअली थोड़े एक और विस्तार में इस विषय पर काम कर रहा हूँ। बाबूजी की बहुत सी कविताएं हैं जिनको मैं संगीतबद्ध करना चाहता हूँ और उसी सुर में गाना चाहता हूँ जिस सुर में वो सुनाया करते थे, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह डाल के। मधुशाला हमने रिकॉर्ड की है, वो हो सकता है एक आध महीने में आप सबके सामने पेश करूँगा। और बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जिनको मैंने पढ़ा है लेकिन उसको सजाया है संगीत के साथ। तो इस तरह का परिश्रम हम कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामने आए। तो कहीं ना कहीं मेरी समझ ऐसी है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लिटरेचर में, रीडिंग्स में, पोइट्री वगैरह में इतनी उनको दिलचस्पी नहीं है। तो अगर हम उसको एक अच्छी तरह से ड्रेसअप कर सकें संगीत के साथ और अच्छी तरह से उसकी व्याख्या कर सकें, सुना सकें, हो सकता है कि शायद उनको पसंद आए। तो कहीं ना कहीं ये म्यूज़िक के साथ हमेशा लगाव रहा है, सबको रहता है म्यूज़िक के साथ। आप लोग भी कभी बैठिए स्टूडियो में, बड़ा मज़ा आता है। आजकल बहुत आसान हो गया है, ऑटो ट्यूनर पे डाल दीजिए, बेसुरा गाइए, सुर में निकलता है एकदम, और फिर उसके साथ वो म्यूज़िक पैडिंग वगैरह सब कर देते हैं, एकदम बढ़िया हो जाता है। बच्चन सर,
Bachchan sir and Rishi sir, you heard Justin towards your left from PTI. Both of you have had massive success in your career of lasting several decades. Is there still somewhere in the back of your head the fear of failure when a film comes out? Or perhaps it's essential for a star to let go of the fear eventually? No, no, it's always a fear. And from the day, much before it is released, that's all we talk about. What is going to happen? How many theaters? How much do we expect? Are they going to like it? Not going to like it? Komal Nahata is laughing because he knows that his verdict is the first one that we read and we make an opinion. Yaar, Komal Nahata ne isko flop bol diya, gaye kaam se. So yes, it's always a worry for us. And even now, just before we came hiding behind the screen, Chintu and me were just talking about, what is the collection, what is going to happen, what is going to happen in the days to come. 7% drop, what does that mean? I met Amir yesterday. Amir came to see me yesterday for some other matter. And he had a peculiar, a financial reading about film. He said, your first week collection, so your first weekend collection, that is 3 days, if it is, say, 10 crores, if you multiply it by 3, that is an estimate of where your film will eventually go. I don't know if that's correct. And if it is, if it sustains in the remaining days, then you multiply by 5. Am I right? Komal, you're a genius. Really? So that's what he said. So if that is the assumption that we take mathematically, I don't know all this. So then I think that we are on good ground. What do you feel, Chintu? You're very good No, with this is figures. news to me. I didn't know. Yeah. ये theory नहीं होनी थी मेरे को. Yeah. जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी है, उसमें एक सीन है जहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड वाला जो सीन है, वो एक्चुअली 12 पन्ने का सीन था. और मैंने बच्चन साहब को कहा कि सर ये हम लोग 1 शॉट पूरा करेंगे, मतलब जिसमें आपको प्रॉपर्टी हैंडलिंग भी है, इमोशंस के भी इतने चेंज ओवर्स है, सार्काज़म है, रोना है, प्रॉपर्टी हैंडलिंग में आपको रिकॉर्ड रखनी है, मूवमेंट काफ़ी है, मतलब वो यहाँ से चिंटू जी के पास जाएंगे, फिर वापस वहाँ जाएंगे, 3, 4, 8, 6 मोमेंट है, फिर जाके फ़ोन करना है, फ़ोन पे बात करनी है. तो ये पूरा सीक्वेंस 12 पन्ने का था. तो मैंने रिक्वेस्ट किया था बच्चन सर को कि सर ये 1 शॉट करेंगे. एंड अभी आपको जो फिल्म में दिखाई दे रहा है उसमें आपको बीच में कट्स दिखेंगे कि बीच में चिंटू जी का क्लोज आएगा या जिमित का क्लोज आएगा, पर वो 12 पन्ने का सीन था, वो हम लोगों ने 1 शॉट पूरा सीन शूट किया था. और बच्चन सर ने पहले टेक से ही इतना बढ़िया करना शुरू हो गया था कि हम लोग जब बच्चन सर कहते थे कि और एक करना, तो हमको लगता था नहीं अच्छा मिला है, पर ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग कि 12-12 पन्ने का सीन जो था वो करते थे. एक टेक में तो मुझे मालूम है कि मैंने कहा कि यार लक्ष्मण इज़ आवर DOP, कैमरामैन थे, मैंने उसको बोला कि लक्ष्मण ये थोड़ा फोकस गड़बड़ लग रहा है, इतना लंबा शॉट दिया बच्चन सर ने और इतना आउट ऑफ फोकस जाएगा तो मैं उनको कैसे बोलूं कि आउट ऑफ फोकस था, आप और एक बार कीजिए. तो लक्ष्मण ने कहा कि आउट ऑफ फोकस सीन नहीं है, बिकॉज यू आर क्राइंग, आपकी आंखों में पानी इतना है कि आपको जो सीन है वो आउट ऑफ फोकस लग रहा है. एंड देन जब मैंने आजू बाजू देखा तो पूरा यूनिट था, तो पूरा यूनिट ऐसे ही रो रहा था. तो मैंने बोला कि यार क्या बात है. तो यही एक मैंने जो कोमल जी के शो पर भी शेयर किया था कि बहुत ही बढ़िया ऐसे कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसको 1 शॉट में ही शूट करना मज़ा आता है. और ये सीन ख़त्म होने के बाद रात को मुझे 2:30 या 3 बजे बच्चन सर का और एक बार रात को फ़ोन आया 2:30 बजे और मुझे कहा कि उमेश अगर लाइटिंग सुबह भी चेंज नहीं हुई है तो वापस वही कर देना, क्योंकि मैं और एक बार करना चाहता हूँ. सो 2:30 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं सुबह और एक बार ये सीन फिर से करना चाहता हूँ. देन अगेन वी टुक 2-3 शॉट्स एंड अभी सीन देखिए आप कैसा लग रहा है. I think sometimes it's very beneficial, not just for the actor but for the scene itself, if you can do it all in 1 shot, because there's a continuity of expression, of emotion, the time taken, the gaps, the pauses that you have. I think it's very helpful. Many a times we attempt that,
if there's a sequence or a scene which requires a continued kind of speech and effort, I actually would rather do that than cut. Because every time you cut, you have to get back into that mood again. Prepare yourself for a close-up or for a over-shoulder shot, and that mood is lost. I kept quoting to Komal in one of my interviews that I did a film called Pink, where in the courtroom sequence we had 8 cameras running at the same time, and each one of them catching each character in close-up, in long shots, and mid shots. And there were 20-page scenes which we all did in one shot, because it was almost like theater. You just kept acting, and many a times we give a shot and then we're finished with it, and we go and sit in the van or sit separately and you forget about it. But here, every time we delivered our lines, you had to come back and keep reacting, because the other person who's got up to give his lines, his emotions are going to be reflecting on you, so you have to keep reacting. I think that practice worked very well in that particular sequence in the film. And I hope that there are many more sequences like this in future films as well, where we get an opportunity to continuously do one sequence in one complete shot. And now, because there's no problem about film, in our days we used to have, this problem about film and raw stock and the expense that it used to create. But now with digital, you can just keep rolling for hours and hours and hours. So I hope that we get such more opportunities again. ऋषि सर, आपके परिवार में दीपिका, आपके परिवार वालों ने फिल्म देखी तो रणबीर का रिएक्शन क्या था, या और सब सदस्यों का क्या रिएक्शन था? बुरा तो बोलेगा नहीं वो मुझे। खैर अभी तो अपने दूसरे घर में रहता है तो बुरा भी बोल सकता है। नहीं, बट सबको सबका काम अच्छा लगा, सबको अच्छी लगी पिक्चर। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ इनके सामने एक चीज़ जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, और इन्होंने मुझसे करवाई थी लेकिन नहीं डाली। देखो, दत्तात्रेय भखारिया ही सेज कि जब हाँ मैं सर, अच्छा मरूंगा, बोल दिया। मेरे भी बहुत से सीन्स कट गए, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। यस, तो वो सीटी मारने के लिए कहा था, बोलना वेल डन, तो मैंने डबिंग, वाइल्ड डबिंग में वेल डन बोला था, लेकिन इसे डाला नहीं पिक्चर में, सिर्फ सीटी डाली उन्होंने। पूछिए क्यों, वो तो गलत किया उन्होंने। और सर चलिए मैं बताता हूँ। सर मेरा जो इंट्रोडक्शन सीन है, मैं स्कूटर को रोकता हूँ, उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे मरेगा क्या? मैंने कहा नहीं, मैं मरता नहीं हूँ। और फिर मैं अंदर जाता हूँ, स्कूटर में बैठ जाता हूँ, और बैठ करके मैं पूछता हूँ कहाँ से हो? तो बोलता है जौनपुर से। तो चलो जौनपुर के वहीं से ले चलो। वो कहता है कहाँ से? अरे नहीं, कुछ होगी तुम्हारी। ऐसे मैंने पूरा इंडिया घूमा है ऐसे ही। उसके बाद मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि सर कुछ गाना वाना सुनेंगे आप, क्योंकि स्कूटर्स में आजकल संगीत होता है। तो मैं कहता हूँ है क्या तुम्हारे पास कोई रफ़ी, एसडी, यानी वो पुराने ज़माने की बातें बस। तो वो कहता है नहीं सर, वो तो नहीं, आजकल तो सब नया एकदम धड़ाम धुलूम होता है। वो बजाऊँ क्या? मैंने कहा नहीं, वो मत करो, तब तो हॉर्न ही बजा दे तू। इससे बेटर है कि तू हॉर्न बजा दे। वो पूरा सब निकल गया सर। और मैंने जब इनसे पूछा क्यों निकाला, कहते सर वी मस्ट गेट टू द स्टोरी। Who's interested in what you are saying in the rickshaw? But I feel that it was a good introduction to show what kind of a character he is. That even though he is linked to some of the old timers like Mohammad Rafi and S.D. Burman and their music, but he has the sense of humor to say, it's better you play the horn rather than play today's music, because that is going to sound better than what the kind of music we're getting. So I thought that was a wonderful reflection of his characterization. But he felt, no, we're wasting time there. So he cut all that out and brought this. I asked him why. He said, no, we must get to the story quickly. One more thing, sir. Sorry. Somewhere I wanted to show that because he's 102 years old, he does have some problems, and he has mathematical problems. So every time there is an issue of numbers, he takes a pause and say, 102, 116, high. 16 years to go. So he's calculated that. All those portions, sir, you have removed. And why? Because in the film, Chintu ji is a mathematics professor. So I thought that was a nice reflection for me to keep doing. And there were 2 places where I did that, and you have removed both of them. No, one I have kept. 65 वो मैंने जानबूझ के बोला इसलिए रख दिया आपने।
But if you keep one, then it doesn't make sense. If you keep it 2 or 3 times, then you know that every time there's something to talk about numbers, this guy is going to think 118, 102, 100. Yeah, 16 years to go. So all those moments were lost in the film. Sorry. तो उमेश जी 102 मिनट करने के लिए आपने ऐसा किया था सारी? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब इंट्रोडक्शन होता No, है. I'll tell you why he did that. Because he wanted the length of the film to be 102 minutes. Hello, sir. हाँ, This बोलिए. is- Sir, this is, yeah, sir. Varun from India Today. So we see there's a shift in the cinema, like there are a lot of web series coming up. So what's your take on that? I would like to know it from the writers and you as well. There's a lot of what coming? Web series that are coming up Ah, online. okay. So I think web series, I particularly feel that it's somewhere in between. It's in between television and cinema. And sometimes there are subjects that you want to explore as a creator. I think it's a very good medium to be there, because television, you know, is of a certain kind and it caters to a certain type of an audience. Whereas a web series medium, where you want to take a very off subject and do it with a certain amount of certain kind of magnitude, I think it's a very good medium to explore. and so one question to Amitabh sir. So we have seen you. Sir, बाकी लोगों ने जवाब दिया वेब सीरीज. जिमित. आई थिंक बहुत ही अच्छा मीडियम है ये, कि जहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो सेंसर में आप कट जाती हैं, आप लोगों को नहीं दिखा पाते हैं, जो एक ब्रूटल ट्रूथ है, तो वो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप फ्यूचर की चीज़ें भी दिखा सकते हैं, और या तो एक ग्राउंड लेवल पे जो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो लोगों तक अभी तक नहीं पहुँची है, लोगों को नहीं पता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर आप उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं, उसको अच्छी तरह से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो आई गेस इट्स अ वेरी वेरी गुड मीडियम, एंड इट विल डेफिनेटली टेक that medium to some another level. I guess it will inspire the films also and the television also to change with the time. चिंटू. Okay. So चिंटू. ये जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं, पर ये है कि मेरा अनुभव नहीं है करने का टेलीविजन या वेब सीरीज़, तो मैं उसके बारे में ऐसा कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ फिलहाल. बट जब कभी वक्त आएगा करेंगे, तब बताएंगे आपको. और मुझे ये लग रहा है कि कुछ लिटरेचर जो है उसकी वजह से काफ़ी अच्छा बाहर आ रहा है, जो काफ़ी टाइम से अभी, क्योंकि कंटेंट भी उनको चाहिए होगा वेब सीरीज़ बनाने के लिए, तो कुछ नवल कथाएं जो बहुत अच्छी हैं वो भी सब अच्छी तरह से आ रही है, जो ना फिल्म में आ रही थी ना टीवी में भी नहीं दर्शाते थे वो लोग. तो काफ़ी अच्छा कंटेंट बिकॉज ऑफ वेब सीरीज़ आने लगा है. सो दैट्स अ गुड थिंग. इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर. Yeah, I would agree with what all of them have said, but mainly I look upon it as yet another job opportunity for me. To get another job. Okay, Yes, you were asking. Sir, I have one question for you. So we have seen you as a song composer, we have seen you as a singer, as an actor. When can we see you as a director? I don't know direction, and I'll never be able to do that. सब झूठ बात. Because ये सब करते हैं, सब जानते हैं. ये हमको मेरे से भी सेट पे कराते थे. ये सब झूठ बात है. Seriously, actually that's a question that I've always wanted to know. Why and what goes through a director's mind when he has to place a camera in a particular angle and a position? It's always intrigued me. Why are you going so low? Why are you going so high? Why have you got a crane shot? Why are you doing a trolley? Why is there a mid shot from the side and not from in front? All these things are decisions that the director takes. And I've never been able to understand that. So if I was to be asked to do that, I would, never know what to do. I'd be at sea. So that's why I just follow what the director tells me to do. And hopefully, that's the way it's going to be. अभी फिल्म अच्छी चल रही है और हम चाह रहे हैं कि आप सबके सामने केक कटिंग हो इस चीज़. अच्छा, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? बोलिए.
पराग, सही सही सवाल पूछना यार, कुछ गलत मत पूछो। पूरा शॉट लिया जा रहा था और सबकी आंखों में आंसू थे, उसके बाद आपके जहन में वो क्या चीज थी कि आपने रात को 2:30 बजे इनको कॉल करके कहा कि मैं फिर करना चाहता हूँ? एज एन एक्टर आपको क्या लगा कि क्या मिसिंग था? So I felt that because despite the fact that he's 102 years old, there is some intrinsic strength in him. That strength to be able to try and convert his son towards his attitude towards his son. Some strength to be able to instill some kind of change that he wants to see in the son. So he's somewhere inside him a fairly strong guy. The way I said Amol, I felt was too emotional. For a person who has that kind of intrinsic strength, for him to break down to that level, I felt was wrong. He didn't feel so and he let it go. And then when we were dubbing the sequence, he said, you've already dubbed the scene and you've done it the way you want. Though I wanted to bring it down a bit, but he didn't agree with it. I just felt that. And that was what was disturbing me all night. I felt that if he's a character that has remained strong throughout the film, even in his, even when he's describing the fact that he's got a brain tumor and he's going to live just for a very limited amount of time, he's not emotional about it. And I think we discussed this on set as to how we want to, even when he's saying, you know, should I tell you how this happened or how I found out? वो बहुत खुश होकर बोला, "Hey, मेरे को मैं तेरे को बताता हूँ कैसे पता चला." So I felt that this is a guy who's not too disturbed about the fact that he's going to die in a couple of months. And if he has that strength of character, will he have that moment of an emotional breakdown like he did? मतलब यहाँ तक कि जब when he's saying, जब वो आप मशीन में जाते हो, MRI मशीन में जाते हो, the way he said it कि जब मैं वो टनल में गया ना, so for him even that machine is a toy. So yeah, यही आइडिया था. तो टनल वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया सर क्योंकि सर हर दूसरे तीसरे महीने मुझे स्वयं जाना पड़ता है उसके अंदर, और मैं लिखता भी हूँ उसको ब्लॉग में कि आज गए थे, आज इधर टूट गया, आज कुछ इधर टूट गया, कुछ दिमाग, तो उसको मैं टनल ही बोलता हूँ. वो है भी टनल से बड़ा खतरनाक है, that MRI machine. Thank you guys. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Very much. Thank you.